Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram, Hare Ram, Krishna Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna
Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Chaitanya Prabhupada Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Krishna Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Ram Ram Hare Hare Jagannath Mandir. Hare Krishna Krishna Krishna
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram 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 Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram 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 Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram 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 Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram 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 Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram 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 Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram 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 Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Gurudev, please accept my humble Ram Ram, obeisances in the lotus feet. Hare Welcome. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare.
Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Guru Maharaj. With your Haribo. permission, yes, Maharaj. Please accept my humble obeisance. Hare Krishna Guru Maharaj, Yeah, please but accept my humble obeisances yeah. of Sri Srila Prabhupada। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। काफी समय बाद आज पुनः हमारे बीच श्रीमान हरि कीर्तन प्रभु आज का टॉक देने उपस्थित है। आज का टॉक प्रारंभ हो उससे पहले एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। कल आप सभी के व्हाट्सएप पे ये पोस्टर हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स पे पोस्टर सर्कुलेट हुआ है और आप सभी जानते हैं 27 तारीख को प्रभु श्री रामचंद्र का दिव्य महोत्सव श्री राम नवमी उत्सव है। तो इसके उपलक्ष्य में 3 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया गया है, जो कि कल से प्रारंभ होगी। 25, 26 और 27 3 दिवसीय राम कथा करेंगे या गान करेंगे श्रीमान उद्धव प्रभु। तो हमारे दोनों आईडीज पे ये कथा आप ज्वाइन कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, आप भी ज्वाइन कीजिए और अपने इष्ट मित्रों, अन्य भक्तों को भी बताइए ताकि सभी लाभान्वित हो। तो अब ज्यादा समय न लेते हम श्रीमान हरि कीर्तन प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी गुरु महाराज जी के जोन में काफी मुख्य सेवाएं जिम्मेदारी निभाते हैं आरएसए के रूप में, और साथ ही में हमारे गुरु महाराज जी के जोन के कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर भी है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। विशेष रूप से गुरु महाराज का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है भू वैकुंठ इस्कॉन पंढरपुर का हमारा मेगा प्रोजेक्ट, उसके भी प्रभु जी डायरेक्टर है, मुख्य सूत्रधार है। उनकी निर्देशिता या अध्यक्षता में ही ये कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ रहा है, मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो हमारा परम सौभाग्य आज प्रभु जी का हमें संग सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है, नाम जप को थोड़ा विराम देकर ध्यान पूर्वक आज का टॉक श्रवण करें। ओवर टू यू हरि कीर्तन प्रभु। Thank you. Thank you, Padma Mali Prabhu, for giving me this opportunity. हम सब लोग थोड़ा मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण हम लोग क्यों करते हैं? किसी भी आध्यात्मिक चर्चा की शुरुआत में, ताकि हम कृतज्ञता अपनी प्रकट कर सकें। कृतज्ञता कहा जाता है कि समस्त अच्छे गुणों की जननी है। Gratitude is the mother of all good qualities. So that's why we chant Mangalacharan to express our gratitude towards our Acharyas, Guru Maharaj, Srila Prabhupada, the Guru Parampara, their lordships. So let's chant Mangalacharan. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Namahom Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschate Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, तो जैसा मैं कह रहा था, कृतज्ञता समस्त दिव्य गुणों की जननी है। क्योंकि हम लोग अक्सर हमारे पास जो होता है उसका मूल्य नहीं समझ पाते हैं, और जो नहीं होता है वो हमें अधिक मूल्यवान लगता है। इसलिए जब हम संतुष्ट होते हैं कि हमारे पास जो है भगवान की कृपा से पर्याप्त है, और उसके लिए हम भगवान को भूरी भूरी धन्यवाद करते हैं, गुरु महाराज को भूरी भूरी धन्यवाद करते हैं, प्रभुपाद को। आप सोचो, यदि ये लोग नहीं हो हमारे जीवन में तो हम कहाँ हो, हमारा क्या हो, हम लोगों की क्या दुर्गति हो जाए संसार में। तो इसलिए हम लोगों को ग्रैटिट्यूड जो है ये भर भर के हृदय में डेवलप करना चाहिए हमारे भक्तों के प्रति जिनके साथ हम लोग होते हैं। क्योंकि समस्त भक्तों में बहुत सुंदर सुंदर गुण होते हैं, लेकिन चूंकि हम उनके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं रखते हृदय में, तो हमें उनके गुण नहीं दिखाई देते। हाउ ब्यूटीफुल दे आर, हाउ नाइसली दे आर सर्विंग गुरु महाराज। हमसे कोई छोटी सी बात उनके साथ हो जाती है और हम सोचते हैं ओ ये व्यक्ति तो ऐसा है, हम उसको टैग कर देते हैं। बट अगर हम उस छोटी सी बात को हटाकर अगर उनके दिव्य गुणों को देखना चाहें, तो उनके अंदर भर भर के हमें दिव्य गुण दिख सकते हैं। तो इसलिए वी शुड ऑलवेज बी फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दीज वंडरफुल डिवोटीज जो हमारे जीवन में हैं, हमारे काउंसलर्स, हमारे मेंटर्स, हमारे शिक्षा गुरुज, हाँ, जिनके माध्यम से हमको इतना ज्ञान प्राप्त होता है, तो हम लोग कुछ बोल बैठ के बोल पाते हैं। एक्चुअली हमारे अपनी कोई भी शक्ति नहीं है कि हम भगवत गीता भागवतम को खोलकर इसके ऊपर विवेचना कर सकें। एटलीस्ट आई डोंट हैव दैट क्वालिफिकेशन। बट ये गुरुदेव की कृपा है कि वो सेवा में लगाए हुए हैं, और somehow he is just making me to serve। तो आज का हमारा जो चर्चा का विषय है, हम उसकी तरफ जाएंगे। आज की चर्चा का विषय है चेस्टिटी द डिवाइन क्वालिटीज इन मदर्स। सतीत्व जो है, पवित्रता जो स्त्रियों में, जो सतीत्व जिसको कहते हैं, वो जो है दिव्य गुण है माताओं के अंदर। तो हम उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। ये बड़ा आवश्यक विषय है और इस समय बड़ा प्रासंगिक है, क्योंकि इस्कॉन की 50-60% पॉपुलेशन हम मदर्स की पाते हैं, माताओं की पाते हैं, जिसमें कुछ जवान बच्चियां भी होती हैं, कुछ मिडिल एज फीमेल्स होती हैं, कुछ सीनियर सिटीजन्स भी होते हैं। लेकिन अधिकांश यंगस्टर्स बहुत हैं अधिक इस्कॉन में। तो चूंकि मैं स्वयं 3 पुत्रियों का पिता हूँ, और आप सबके आशीर्वाद से, गुरुदेव की असीम कृपा से, अभी मैंने अपनी तीसरी पुत्री का भी विवाह किया है। तो थोड़ा सा अनुभव है, थोड़ा सा क्लोजली इस विषय को समझा है कि स्त्रियों में किन गुणों की महत्वता होनी चाहिए, किन गुणों को अधिक हमने विकसित करना चाहिए, कैसे हमने अपनी पुत्रियों का लालन पालन करना चाहिए, ताकि वो बहुत ही अपने जीवन में सुखी रह सकें, कंटेंटेड जिसको कहते हैं, संतुष्ट रह सकें। और इस प्रकार से वो जो दूसरे परिवार में जाती हैं, क्योंकि स्त्रियां, बच्चियां जो होती हैं, गर्ल्स जो होती हैं, फीमेल्स जो हैं, ये पिता की संपत्ति नहीं है। जैसे पुत्र के ऊपर हमारा अधिकार होता है, ऐसे पुत्री जो है दूसरे घर की संपत्ति होती है। तो इसको हमने जन्म से ही इस प्रकार से ट्रेन करना चाहिए, इस प्रकार से लालन पालन करना चाहिए। और ये एक नायाब तोहफा है ना, दोनों ही उर्दू वर्ड्स हैं। दे आर लाइक प्रेशियस जेम्स। ये बहुत ही अनमोल रत्न जैसे हैं, है ना। इतने सॉफ्ट होती हैं कन्याएं। तो इनको हम किस तरह से बचा कर रख सकें, है ना। जैसे हमने सुना था एक स्टोरी, एक पुत्री अपने पिता के पास गई, बड़ी गुस्से में थी कि मेरा भाई ये सब कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकती। आप उसको सब जगह जाने को अलाउ कर देते हैं, मुझे क्यों रोक के रखते हैं, मेरे ऊपर बंदिशें क्यों लगाते हैं। तो पिता ने फिर उस पुत्री को बताया कि बेटा, हाँ, ये जो फावड़े हैं, कुडाल है,
ये पराते हैं जिसको हम लोग खेत में इस्तेमाल करते हैं, ये कितनी हार्ड होती हैं। इसका हम लोग कितना रफ यूज करते हैं। और ये देखो खुले में पड़ी हुई है, खुले में, ये देखो आंगन में सब पड़े हुए हैं। लेकिन आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, फिर वो अपनी तिजोरी में ले गए। पहले घरों में तिजोरी होती थी, आप सबने देखी होगी। तिजोरी खोल करके उन्होंने एक डिब्बा खोला, उसके अंदर एक छोटा डिब्बा था, और फिर उन्होंने उसको खोला, और उसके अंदर उनकी पत्नी का हीरे का बहुत सुंदर अंगूठी रखी हुई थी। उन्होंने कहा देखो हमने इस अंगूठी को कहाँ रखा है, कितना केयरफुली, कितना प्रोटेक्शन के साथ रखा है, कि इसको किसी की बुरी नजर ना लग जाए, ये कहीं कोई चुरा ना ले। बोले तो बेटा, कन्याएं ऐसी होती हैं, हाँ पुत्रियां ऐसी होती हैं, इनको ऐसे हमने संभाल के रखना होता है। तुम्हारा कोई कंपैरिजन नहीं है, तुम अपने भाई से अपनी तुलना मत करो। हाँ, तुम एक बहुत ही अनमोल हीरे की तरह हो, इसलिए तुमको मैंने इस प्रकार से तुम्हारे ऊपर बंदिशें लगाता हूँ। तुम्हारे साथ में सर्वेंट्स को भेजता हूँ जब तुम कहीं बाहर जाती हो। तुम्हारे पास में आसपास में मैं हमेशा सजग रहता हूँ, कि तुम्हारे आसपास कोई गलत लोग तो नहीं आ जाएं, तुम्हारे ऊपर किसी की बुरी नजर ना पड़ जाए। तब उस बच्ची को समझ में आया कि मेरे पिता मेरे से कितना स्नेह करते हैं, और कितनी मेरी केयर कर रहे हैं। तो माय डियर डिवोटीज, हम सबको पुत्रियों का लालन पालन बहुत ही अलग तरीके से करना है, बहुत अलग तरीके से करना है। और ये भ्रांति है आज के जो ये मॉडर्न समाज है, मॉडर्न सोसाइटी है, इसमें हम लोग कहीं पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, पथ भ्रमित हो रहे हैं। और हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि नहीं, लड़कियां लड़कों के बराबर हैं। और यहाँ पर विमेन लिबरेशन की बात आती है, जेंडर इक्वालिटी की बात आती है। एंड आजकल तो वोकिज्म के नाम पर, और मतलब जेंडर इक्वालिटी के नाम पर क्या क्या चल रहा है। तो मैं आप सबके सामने करबद्ध होकर ये बात कहना चाहता हूँ, आप सब भारतीय माताएं हो। हम हो सकता है यहाँ पर कुछ विदेश से भी माताएं हो, लेकिन भारतीय माताओं का एक बहुत विशेष रोल है, बहुत विशेष रोल है। अनफॉर्चुनेटली पाश्चात्य जगत में हमारी माताओं को इस तरीके से आ, ऐसा ऐसा सामग्री बना दी गई जिसका कि शोषण आसानी से हो सके। भी हमने सुना था पीछे कुछ दिनों पहले कि अमेरिका में अब एक क्लब डेवलप हुआ है, जिसमें फीमेल्स आर कमिंग फॉरवर्ड, स्त्रियां माताएं आगे आकर के कह रही हैं कि देखो हमें 50 के दशक में, 60 के दशक में ये पुरुषों ने हमको घर से हमारे बाहर निकाल दिया, और उसके बाद में हमारे विमेन लिबरेशन के नाम पर, जेंडर इक्वालिटी के नाम पर हमको देखो किस तरह से इन्होंने शोषित किया। हमारी ग्रैंड मदर थी, हमारी मदर थी, घर में रहती थी, कितनी खुश थी, लेकिन हम लोगों को इन्होंने अपने बराबर लाने की एक प्रोपागेंडा चला करके, और हमारा किस प्रकार से शोषण हुआ। और हम देख सकते हैं कि जहां पर स्त्री प्रोटेक्टेड नहीं है, जहां पर माताओं का प्रोटेक्शन नहीं है, वहां समाज में बहुत विभत्स रूप से बुराइयां पनपने लगती हैं। इसी का वर्णन अर्जुन जो है प्रथम अध्याय में भगवत गीता के कर रहे थे, जब वो कह रहे थे वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। अगर अगर कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी, तो वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। आज सारा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, संतानें संतानें अवांछित होने लगेंगी, और ऐसी संतानें पिंडोदक क्रियाएं नहीं करेंगी तो उनके पितर गिर जाएंगे। कितने कितने अर्जुन जो हैं तर्क देते हैं कि माताओं का प्रोटेक्शन समाज में हो किया जाना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं भागवतम में अनेक अनेक माताएं हैं, अनेक अनेक माताएं हैं। कुंती महारानी पहला उदाहरण, भागवतम के पृष्ठों में कुंती महारानी का वर्णन आता है। उससे पहले उत्तरा जी का वर्णन आता है। उत्तरा जी जो है पांच 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 विशाल काय, बहुत ही पावरफुल, वेरी स्ट्रांग, चक्रवर्ती सम्राट, अभी अभी एक बहुत भीषण युद्ध जीत कर आए हैं, पांच महारथी हैं। हाँ, पांचों महारथी खड़े हैं, परंतु उत्तरा जी इस लेवल की भक्त हैं। और हमने उत्तरा जी का जीवन भी देखा था विराट देश में, किस प्रकार से वो जो है तो सुंदर कलाएं सीख रही थी, वृहंडला से नृत्य सीख रही थी, गान की शिक्षा सीख रही थी। हाँ, तो ये सारी शिक्षाएं सीख रही थी। और अभी वो भी इतनी अच्छी भक्त हैं कि उन्हें पता है कि भगवान तो, कहने का मतलब क्या है, प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इसके विषय में हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्तरा जी किस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करती हैं अपने पुत्र के रक्षण के लिए। और उसके तत्काल बाद
भगवान का जब जाने का समय आ जाता है, भगवान रथ के ऊपर बैठ जाते हैं और जाने की तैयारी में, तो उस समय कुंती महारानी भागती हुई आती हैं, भागती हुई आती हैं। चक्रवर्ती सम्राट की माँ है, पूरे संसार के राजा हैं, महाराजा युधिष्ठिर। हाँ, 5 उनके पुत्र हैं, पुत्र वधु है। तो लेकिन फिर भी वो भगवान के रथ को रोकती हैं और अपनी स्त्रियों की विशेष करके वो दशा का वर्णन करती हैं कि हम स्त्रियां कितनी निर्बल होती हैं। और ये वास्तव में विनम्रता का परम लक्षण है। जब हम बहुत उन्नत होते हैं, परंतु हम अपने को, अगर कोई उन्नत होता है लेकिन जितना वो विनम्रता का प्रदर्शन करता है, जितना विनम्र वास्तव में उसका भाव होता है विनम्रता का, उतना ही उसको सराहा जाता है। भक्तों, देखिए संसार में जब कोई मिथ्या अहंकार का प्रदर्शन करता है, देखो मेरे पास कितनी बड़ी वेल्थ है, कितना मेरे पास ऐश्वर्य है, तब उस वो अपने शत्रु उत्पन्न कर लेता है। शत्रु उत्पन्न कर लेता है, उससे द्वेषी लोग पैदा हो जाते हैं जो उसको गिराने की तैयारी करने लगते हैं, उसके साथ फॉल्स कंपटीशन में खड़े हो जाते हैं। और भक्तों के समाज में जब कोई अहंकार करता है, ओह देखो मैं कितना अच्छा कीर्तनिया हूँ, तो भक्त लोग उसके ऊपर तरस खाते हैं। भक्त लोग उसको हृदय में सोचते हैं, हाय ये भक्त को अभी इतना भी नहीं पता कि ये कुछ भी नहीं है, केवल और केवल भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारहमिति मन्यते। तो ये जो, अगर हम विनम्र नहीं होते हैं, हमारे अंदर मिथ्या अहंकार का प्रदर्शन होता रहता है, तो हम दोनों समाजों में, चाहे भौतिकवादी लोगों के समाज हो, चाहे भक्तों का समाज हो, हमें हे दृष्टि से देखा जाता है। हाँ? कुंती महारानी यहाँ भगवान से कह रही हैं, हाँ, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानाम अंतर बहिर्अवस्थितम माया जवनिका छन्नम अज्ञाधुक्षजम अव्ययम। इसके न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम हि स्त्रियः। कहती हैं, आप परमहंसों के द्वारा, बड़े बड़े मुनियों के द्वारा, अमल आत्माओं के द्वारा, हाँ, चिंतनशील व्यक्तियों के हृदय में भक्ति सेवा के दिव्य विज्ञान का प्रसार करते हैं। आप स्वयं अवतरित होकर उन्नत आध्यात्मिक ज्ञानियों और चिंतनशील व्यक्तियों के हृदय में भक्ति सेवा के दिव्य विज्ञान का प्रसार करते हैं, जो पदार्थ और आत्मा के बीच भेद करने में सक्षम होकर शुद्ध हो चुके हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको पूर्णता कैसे जान सकती हैं? शी इज प्लेसिंग हर सेल्फ इन अ वेरी हम्बल पोजिशन। हाँ, हम स्त्रियां आपको पूर्णता कैसे समझ, परपट में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस तथ्य की पुष्टि रानी द्वारा की गई है, महारानी कुंती द्वारा की गई है, जो एक भोली स्त्री की भूमिका निभा रही हैं। स्त्रियां जब भोली होती हैं, लज्जा के आंचल में ढकी होती हैं, और जब उनके अंदर चेस्टिटी होती है, तब उनका जो गुण है, वो जैसे कहते हैं हीरा, डायमंड की तरह वो जो है प्रकाशित होने लगता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो एक भोली स्त्री की भूमिका निभा रही हैं। सामान्यतः स्त्रियां दार्शनिकों की तरह चिंतन करने में असमर्थ होती हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, असमर्थ होती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि स्त्रियां आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए दे आर नॉट क्वालिफाइड। हिस्ट्री ने देखा है, माताओं ने बहुत बहुत अच्छी, अपाला, गार्गी आदि स्त्रियों ने बहुत अच्छे से शास्त्रों को पढ़ा है, शास्त्रों को समझा है। हाँ? ऐसा नहीं है कि दे आर रिफ्रेन्ड फ्रॉम रीडिंग स्क्रिप्चर्स, लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है ना, कि तरह चिंतन करने में असमर्थ होती है, परंतु वे भगवान की कृपा की पात्र होती हैं। भगवान जो हैं, कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं मुझे केवल पुरुष ही प्राप्त कर सकते हैं। रादर रादर स्त्रियां चाहें तो अपने अंदर वे दिव्य गुण बहुत जल्दी प्रकट कर सकती हैं, जिससे वो राधा रानी के हृदय को समझ सकें, गोपी जनों के हृदय को समझ सकें। पुरुषों में जो कि पुरुष अभिमान होता है, तो कई बार बड़ा डिफिकल्ट जाता है उस भाव को समझ पाना, परंतु स्त्रियां बहुत जल्दी, इसीलिए भगवान कहते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये भी पाप यो नेहा, हाँ, ये भी शिव पाप यो नेहा,
स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास तेपि यान्तिम पराम गतिम, वे भी पराम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, परंतु वे भगवान की कृपा की पात्र होती हैं, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता और सर्वशक्तिमानता में विश्वास रखती हैं और इस प्रकार निसंकोच प्रणाम करती हैं। नमस्ते पुरुषम तो आद्यम ईश्वरम प्रकृति, जैसे कुंती महारानी यहाँ पर करें। उनके भतीजे हैं, भाई के पुत्र हैं, छोटे हैं, उनसे उम्र में बहुत छोटे हैं। उन्होंने उस समय उनको देखा था जब वो यशोदा मैया से डंडे की मार से डरते हुए भाग रहे थे नंद गोकुल में, दामोदर लीला में। उस समय कुंती महारानी वहीं थी। उन्होंने देखा था छोटा सा बोध बालक कैसा दौड़ रहा है, माँ के डर से कितना कांप रहा है। और लेकिन आज वो उनकी वास्तु स्थिति को समझ चुकी हैं और इसलिए उनसे दिव्य प्रार्थनाएं कर रही हैं। और ये प्रार्थनाएं भागवतम की जिसे कहना चाहिए मुकुटमणि प्रार्थनाओं में कुंती महारानी की प्रार्थना है। प्रभुपाद ने इसके ऊपर पूरी पुस्तक लिखी, महारानी कुंती की द्वारा शिक्षाएं जो दी गई हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल महान दार्शनिक को ही विशेष कृपा नहीं दिखाते, वे उद्देश्य की सत्य निष्ठा को जानते हैं। ही नोज द पर्पस। इसी कारणवश स्त्रियां सामान्यतः किसी भी प्रकार के धार्मिक समारोह में बड़ी संख्या में एकत्रित होती हैं। प्रत्येक देश और प्रत्येक धर्म में यह प्रतीत होता है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अधिक रुचि रखती हैं। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज एक बार अपनी कथा में कह रहे थे, वास्तव में धर्म जीवित ही स्त्रियों के कारण रहता है। कितनी बड़ी क्वालिफिकेशन बता दी महाराज ने। ईश्वर के अधिकार को स्वीकार करने की यह सरलता दिखावटी और बनावटी धार्मिक उत्साह से कहीं अधिक प्रभावी है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो माय डियर मदर्स, विशेष करके आज का क्लास चूंकि आप लोगों को डेडिकेटेड है, तो चेस्टिटी क्या है, व्हाट इज चेस्टिटी। मैंने एक युवान, एक अच्छे भक्त जो इस्कॉन के हैं, जो भी शादी नहीं किए थे, मैंने उनसे पूछा था कि व्हाट इज द फर्स्ट क्वालिटी दैट यू वांट टू सी इन गर्ल्स whom you want to get married। तो उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, चेस्टिटी। चेस्टिटी, चेस्टिटी कहते हैं, चेस्टिटी को तीन शब्दों से परिभाषित किया जाता है, पवित्रता, शील और पतिव्रत धर्म। पवित्रता, शीलता और पतिव्रत धर्म। और इसके अतिरिक्त चेस्टिटी केवल शारीरिक ही नहीं है, शारीरिक निष्ठा नहीं है कि शरीर से हमने कभी किसी का संग नहीं किया इसलिए ये जो है हम जो है चेस्ट हैं। चेस्टिटी लॉयल्टी से भी इसको संबोधित किया जाता है, समर्पण, शुद्ध आचरण, प्यूरिटी ऑफ कंडक्ट और कृष्ण केंद्रित जीवन। यदि ये गुण हमारे अंदर है, लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉयल्टी जो गुण है, ये पहले स्त्री को सदा प्रोटेक्शन में रखने की बात कही गई है शास्त्रों ने। शास्त्रों में कभी भी ये नहीं कहा गया है कि स्त्री जो है वो स्वतंत्र होकर के जो है वो विचरण कर सकती है। ऐसा कभी नहीं कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया स्त्री को सदैव प्रोटेक्शन में रखने की बात की जाती है। इसलिए स्त्री का लॉयल होना बहुत जरूरी है। जब तक उसका विवाह नहीं हुआ है तब तक वो पिता के प्रति लॉयल रहे, पिता के मार्गदर्शन में आचरण करे। और ये पिताओं का, विशेष करके हम पुरुषों का बहुत बड़ा ये दायित्व है कि हम अपनी पुत्रियों को के लालन पालन के ऊपर बहुत विशेष ध्यान दें, बहुत विशेष ध्यान दें। आज के मॉडर्न समाज में हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपनी कन्याओं को बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं। अभी उनको क्या क्या ऑफिसर्स बनाना चाहते हैं, एमबीए बनाना, एमबीए कराते हैं, फिर उनको डॉक्टर्स बनाते हैं। सब अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में कोई बुराई नहीं है। हम एक बार अपनी तीनों पुत्रियों को बैठे थे, बैठा करके हमने उनको समझाया था इस बात को कि बेटा हम आप लोगों को खूब अच्छी एजुकेशन देंगे, जो इतना आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ो, लेकिन इस विद्या का, इस पढ़ाई लिखाई का अहंकार अपने सर पर कभी मत चढ़ने देना। क्यों? क्योंकि तुम्हें मदर बनना है, तुम्हें वाइफ बनना है। वाइफ बनना है, मदर बनना है, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, तुम्हें दूसरे घर की शोभा बनना है। जाकर तुम्हारे ऊपर दो परिवारों का दायित्व है।
तुम्हें अपने पिता के घर की जो मर्यादा है, उससे तुम्हारे जो पति के घर की मर्यादाएं हैं और जो उनके घर के नियम कानून हैं, तुम अगर पिता के घर में अच्छे से पालन करोगी, तभी तुम पति के घर में अच्छी तरह से पालन कर सकती हो। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा दायित्व होता है। जब हम 25 साल तक, 20 22 25 साल तक पुत्री को अपने घर में रखते हैं, हम उसे कैसी एजुकेशन दें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बचपन में देखा था, एक हमारे भक्त थे, हम सेंटिनल हाउस में थे, और वो अपनी पुत्री को लेकर के आते थे। तो पुत्री को, छोटे से बच्चे हैं 1 1.5 साल के, तो वो वैसी ड्रेस पहनाते जिसमें उसका पेट दिखता था, हाथ दिखते थे, जिसे हम लोग संसारिक भाषा में बड़ी क्यूट लग रही है, बड़ा क्यूटी क्यूटी लग रही है, ऐसी ड्रेस पहना के लाए थे। ऊंची स्कर्ट थी, पेट दिख रहा था, हाथ दिख रहे थे, हाँ बिल्कुल पतला सा स्ट्रिप था। तो हमारी एक विदेशी माता जी ने उन प्रभु जी से कहा, प्रभु अगर आप इसको ये ड्रेसेस बचपन से पहनाओगे तो इसकी ये कंडीशनिंग बन जाएगी, और ये बड़े होकर के फिर आप इसको चेक नहीं कर पाओगे, आप इसको चेक नहीं कर पाओगे कि ये ड्रेसेस ऐसी ना पहने। बोली हम लोगों को विदेशों में बचपन में ऐसी ड्रेसेस पहनाई जाती थी, जिसके चलते हमें फिर बड़े होकर के हमें लगा, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ वेयरिंग बिगर ड्रेसेस, वी कैन शो आवर बॉडीज, यू नो। तो समझिए कितना बड़ा एक संदेश है इसके पीछे, कि हम अपनी बच्चियों को कैसा प्रावधान, कैसे वस्त्र पहनाएं। प्रभुपाद ने इतना सुंदर गोपी ड्रेस हमारे इस्कॉन में चलती है, वीमेन हैव टू बी टॉट एवरी लेसन, so that their chastity, their loyalty, their dedication, purity of conduct is contained, is maintained। इस तरीके से उनका लालन पालन करना चाहिए। तो हमने बच्चियों को बैठा के समझाया कि आप लोग जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि क्योंकि पढ़ाई लिखाई आपके, भगवान ना करे, कलयुग है ये, कभी कोई ऐसा समय आ जाए जब आपको स्वयं धनोपार्जन करना पड़े, तो कम से कम आप जो हो जो है अपने विद्या का उपयोग कर सको। लेकिन इस विद्या को अपने दैनिक जीवन में कभी भी अपने सर के सामने मत आने देना, इसको पीछे रखना। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जब हम लोग बच्चियों को पढ़ा लिखा बहुत दे रहे हैं, और उसके बाद में वो अपने पति के समान ही सैलरी ला रही हैं, उससे ज्यादा ला रही हैं, तो आप सोचो कभी वो पति के कहे के अनुरूप आचरण कर सकेंगी? ये बड़ा इजी है समझना। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई यू नो आउट ऑफ वर्ल्ड बात कही जा रही है। जब हमने ऐसा अपब्रिंगिंग दी है, हमने लड़कों के समान उनको पाला है, आप में से कईयों के बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे इस समय मन में, लेकिन सत्यमेव जयते कहा गया है, सत्य की विजय होती है। हमको अपने कन्याओं को ऐसा पालन करना है जिससे उनके अंदर चेस्टिटी, पवित्रता, केवल शरीर की नहीं अपितु विचारों की भी प्रकट हो। हमारे भक्ति विकास स्वामी महाराज ने एक पुस्तक लिखी, मदर्स, विमेन मदर्स और मैनेजर्स, यू नो, हम क्या बनाना चाहते हैं, मदर्स या मैनेजर्स? मदर्स आर सुप्रीमली द मैनेजर्स। मदर्स ने जो मैनेज करती हैं, मदर्स जिस घर को मैनेज करती हैं, उस घर से बच्चे ऐसे निकलते हैं जो कि बड़े बड़े आचार्य बन सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद की माँ ने क्या बाहर जाके काम किया था? या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की मदर ने क्या बाहर जाके कार्य किया था? या रजनी माता जी प्रभुपाद की माँ ने क्या बाहर जाके कार्य किया था? लेकिन उन्होंने घर का ऐसा सुंदर वातावरण बनाया था जहां पर ऐसे ऐसे दिव्य आचार्यों को ट्रेनिंग मिली, यू नो। तो मदर्स आर मैनेजर्स ऑफ दैट प्लेस, जहां से सुंदर सुंदर हीरे मोती निकल के संसार को प्रकाशित करेंगे। मैंने गुरु महाराज की माँ को देखा है, मैंने गुरु महाराज की माँ के स्नेह को देखा है। 5 संतानें थी उनकी, कितने प्रेम पूर्वक उन्होंने अपनी संतानों का भरण पोषण किया, लालन पालन किया। कि हमने अप्पा को देखा, बड़े भाई को देखा, हमने दूसरे ब्रदर का नाम मैं भूल रहा हूँ, महाराज के बहुत ही सुंदर उनका नेचर, अच्छे बहुत सुंदर भक्त, वो भी भगवत धाम गए।
हमने सीता रानी माता जी को देखा, हम परम पूज्य गुरुदेव को देख रहे हैं, और हम सबसे छोटे भ्राता को भी देख रहे हैं। वो उस माँ की मुझे याद आती अक्सर, हाँ, जो जो कई बार महाराज को ऐसे अपने हाथ से प्रेम से खिलाती थी। आप सोचिए उन्होंने कैसी संतानें दी संसार को। गांव की अनपढ़ माता, लेकिन अपने पति के प्रति कंप्लीटली चेस्ट, सरेंडर्ड, लॉयल, डेडिकेटेड, अपने भक्तों बच्चों को पूरा अपना प्रेम हृदय का निकाल करके दिया, बच्चों का ऐसा लालन पालन किया कि बच्चों को माँ के प्रेम के अभाव नहीं लगने दिया। आप सोचिए, जो बच्चे माता पिता के प्रेम के बिना क्रैश में पल रहे हैं, आजकल क्रैचेस बना दिए गए हैं, मदर जाते समय ऑफिस अपने बच्चों को क्रैश में ड्रॉप कर देती है। वहां के लोग बच्चों को पालन पोषण करते समय हाथ में मोबाइल रखते हैं, स्क्रॉल कर करके उल्टे सीधे रील्स देखते हैं, साथ में आपके बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। ये बच्चे कैसे बनेंगे? क्या ये बच्चे समाज को प्रेम देने लायक होंगे? क्या ये बच्चे समाज में आदर देने लायक होंगे? क्या ये बच्चे समाज में पूर्णता देने लायक होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। कितना बड़ा कार्य है एक माँ का। हाँ, और ये माँ जो है, ये ये माँ जो है, ये आनुवंशिक रूप से, अगर उसके गर्भ में असुर का भी बालक था, एक असुर के वीर से गर्भ में स्थापित एक असुर पुत्र को माँ अच्छा एनवायरनमेंट दे करके उसको एक दिव्य भक्त बना सकती है। ये शक्ति है माँ की। कभी सोचा आप लोगों ने? आनुवंशिक रूप से प्रहलाद महाराज एक असुर हैं, एक दैत्य के पुत्र हैं, हिरण्यकशिपु। और हम में से कई, मैं अपने जीवन का उदाहरण जानता हूं। मेरे पिता, मेरे बाबा, हमारे घर में सब ब्रिटिश टाइम में जैसा होता था आचरण, सिगरेट, ड्रिंकिंग, ये सब चलता था। लेकिन मेरी माँ ने मुझे बताया कि मैं जब तुम गर्भ में थे, मैं भगवत गीता पढ़ती थी, हालांकि मुझे समझ में नहीं आती थी। मैं भक्तों में अपने हृदय से कह रहा हूं आपको कि मैं, इस अतिशयोक्ति नहीं है ना, मैं कोई अपनी बड़ाई करने की बात कर, लेकिन जब मैं 5 6 7 साल का था, तब से मैं कहीं जाता था तो बस के बुक स्टैंड पे भगवत गीता की कॉपी देखता था, मुझे भगवत गीता की कॉपी दे दो। ट्रेन से जाना है तो वहां पे बुक शेल्फ में मुझे भगवत गीता की कॉपी दे दो। आई डोंट नो, आई हैड अ वेरी इंटेंस अटैचमेंट टुवर्ड्स भगवत गीता फ्रॉम माई चाइल्डहुड। कहने का प्राय क्या है कि अक्सर, एक बार हमने एक डिबेट में पार्टिसिपेट किया था कि हेरिडिटी प्लेज मोर इंपॉर्टेंट रोल और एन एनवायरनमेंट, क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? हमने इसके ऊपर, हमने इसमें ये बोला था, एनवायरनमेंट प्लेज मोर इंपॉर्टेंट रोल देन हेरिडिटी। ये हमने 12th क्लास में डिबेट में बोला था, हेरिडिटी प्लेज मोर इंपॉर्टेंट रोल देन एनवायरनमेंट। आई सेड नो, एनवायरनमेंट प्लेज मोर इंपॉर्टेंट रोल। माता कयाधु, नारद मुनि के संग में जो एसोसिएशन उसको मिला, उसके गर्भ में बालक को एसोसिएशन मिला। हाँ, तो माँ का गर्भ जो है, एक बालक को, भले ही उसका पिता में सपोज कोई ऐसे गुण है भी, लेकिन एक माँ में शक्ति है कि वो अपने गर्भ में स्थित बालक को ऐसे संस्कार दे दे कि वो बालक एक दिव्य भक्त बन जाए। ये माँ की शक्ति है। कौन सोच सकता है माँ के कंट्रीब्यूशन? कौन कहता है कि माताएं किसी भी प्रकार से पुरुषों से हे हैं? जो पुरुषों को अपने गर्भ में पालती है, वहां से संस्कार देना शुरू करती है, जब बालक बाहर आता है उसका लालन पोलन पोषण करके, और उसको क्या से क्या बना देती है। तो विमेन आर मदर्स, दे आर मदर्स, एंड मदर इज, बीइंग मदर इज द बिगेस्ट क्वालिफिकेशन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यशोदा मैया का कोई स्थान नहीं ले सकता। गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावत, उस गोपी ने तुमको, तुम्हारे दाम को, दाम से तुम्हारे उदर को बांध दिया था। तुम रो रहे थे उसके सामने। प्रभुपाद ने जब भक्त आए, गिरिराज महाराज आए, आई वॉन्ट टू बिकम गॉड, एंड प्रभुपाद ने कहा, यू वॉन्ट टू बिकम गॉड? बट लुक एट दैट गॉड, लुक एट द कंडीशन ऑफ द गॉड, दैट बॉय running from that mother is a god, and he is fearful of that mother. वो उस माँ से डर के भाग रहा है, वो है भगवान। तुम वो बनना चाहते हो या उसके भक्त बनना चाहते हो जो उसको ऐसे
कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, ऐसा भी कुछ होता है क्या? कंट्रोल भी किया जा सकता है भगवान को? तो मैं तो मूर्ख था जो भगवान बनना चाह रहा था। अब मैं भक्त बनने का प्रयास करूंगा, और ऐसा भक्त जो भगवान को कंट्रोल कर सके। यशोदा मैया भगवान को स्नेह से कंट्रोल करती है, प्रेम से कंट्रोल करती है। तो एक मदर जो होती है, एक माँ जो होती है, स्त्री का सोचिए अब उसका, if she wants, she can bring everyone under her control in her home. सब किसी को अपने कंट्रोल में ला सकती है, प्रेम से, स्नेह से, अपने डेडिकेशन से, अपने वात्सल्य से। कहते हैं हृदय का रास्ता पेट के थ्रू होके गुजरता है। हाँ, अपने पति के हृदय में इतना दिव्य स्थान एक माँ बना सकती है। हाँ, उसको अच्छा प्रसाद खिला के। हमारी देवकी माता जी, हाँ, इस्कॉन में बहुत ही वयोवृद्ध एक भक्त हैं। उन्होंने बंगाल में जाकर, वो यूक्रेन में है, यूक्रेन की है, और उन्होंने बंगाल में जाकर लगभग 20 साल बंगाल, वहां बांग्लादेश में जाकर के, और वैष्णव कल्चर को समझने का प्रयास किया कि वैष्णव कल्चर है क्या। और उन्होंने पाया कि वैष्णव कल्चर अगर हमें रियली में सीखना है, तो हमको बांग्लादेश की किसी वैष्णव परिवार में जाकर के रहना चाहिए। और वहां पर वैष्णव कल्चर हम प्रभु लोगों से नहीं सीखते, हम उनकी वहां पे स्थित माताओं से सीखते हैं वैष्णव कल्चर है क्या। They are living examples of humility, tolerance, patience, compassion, unconditional love. They're living examples. They're living examples. माता जी ने वहां जब कल्चर देखा, तब उन्होंने पुस्तकें लिखी, स्पिरिचुअल कल्चर, कृष्णाज डिवाइन सिस्टम, लाइफ, फैमिली ऑफ फैमिली लाइफ एज एन आश्रम। ये पुस्तकें उन्होंने लिखी। हाँ, दिव्य पुस्तकें लिखी। और एक पुस्तक उन्होंने लिखी, एंटरिंग इनटू गृहस्थ आश्रम, जहां पर माता जी बहुत सुंदर तरीके से समझाती हैं इस एक अच्छी भक्त वाइफ बनने के लिए क्या क्या गुणों की आवश्यकता है, एक अच्छी मदर बनने के लिए क्या क्या गुणों की आवश्यकता है ना। और उन्होंने 250 क्वेश्चंस लिखे हैं जो शादी से पहले एक लड़की ने लड़के के साथ डिस्कस करना चाहिए, लड़के ने लड़की के साथ डिस्कस करने चाहिए। और ये 250 क्वेश्चंस अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठ के आंसर करेंगे, ऑनेस्टी के साथ, हाँ, सत्यता के साथ, वो दोनों अपने हस्बैंड्स को, हस्बैंड होने वाली वाइफ को, वाइफ होने वाले हस्बैंड को इतनी अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि उनको कोई जन्म पत्री मैच करने की आवश्यकता नहीं है। They will come to know the interest, spiritual and material interest of their counterparts, you know. तो हॉरोस्कोप मैचिंग भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हाँ, किसी भी मैरिज इंस्टीट्यूशन का, वो भी हम करते हैं। लेकिन वैष्णव कल्चर में हम लोग, हाँ, वैसे प्रश्न करते हैं एक दूसरे से, जिससे कि हम एक दूसरे के आध्यात्मिक स्तर को समझ सकें, उनकी इंटरेस्ट क्या है ये समझ सकें, उनकी क्या भक्ति में स्थिति है, और वो क्या एस्पिरेशंस लेके भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, हम उसको समझ सकें। तो इस समय मैं इस्कॉन में जो देख रहा हूँ, आ, वो थोड़ा सा, बहुत ज्यादा गर्ल्स विशेष करके, वो बहुत स्वायत्तता या इंडिपेंडेंस को प्राप्त होकर के और आचरण कर रहे हैं। मैं इस बात को बड़े खेद के साथ, हृदय भारी हृदय से डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी मैं मायापुर में था नवद्वीप धाम परिक्रमा के लिए। और मुझे वहां एक देख करके एक बड़ा ही अचरज लगा, क्योंकि मैंने देवकी माता जी की इन पुस्तकों को पढ़ा और मैंने समझा। और भगवान की कृपा से मेरी जो ज्येष्ठ पुत्री है, वो मायापुर धाम में ही रह रही है, और उसके 2 बालक हैं, और वो, मैं देखता हूँ बहुत अच्छी तरह से माता देवकी को फॉलो कर रही है। और मादर देवकी बहुत उनके घर भी आती हैं, बिल्कुल ऐसे परिवार के सदस्य की तरह से उनके साथ में घुल मिल गई है। तो मैंने वहां देखा नवदीप मंडल परिक्रमा में कि दो दो लाउड स्पीकर्स की विशेष व्यवस्था की गई थी।
आगे प्रभु लोगों का कीर्तन चलना था और पीछे माताओं का कीर्तन चलना था, जिसमें माताओं ने कीर्तन करना था। आई वॉज बैडली सरप्राइज्ड कि ये माताएं, 80% माताएं अपने उस कीर्तन को छोड़ करके ये प्रभु वाले कीर्तन में एंटर कर रही थी। देखिए, ये मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिसिज्म की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ। इसको आप लोग प्लीज ओपन हार्ट से और खुले दिमाग से समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ। और जब वो प्रभु लोगों के एक प्रकार से समाज ही था, जिसमें जब वो एंटर कर रही थी, और आपको पता है परिक्रमा में कई बार सकरे रास्ते होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से लग के चलना पड़ता है, बहुत कुछ पुरुषों का स्पर्श माताओं को हो रहा था। एंड दिस इज अगेंस्ट वैष्णव कल्चर। आप सोचिए कि हम अपने आचरण से, जो बंगाल के लोग हैं, जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, जो वहां रह रही हैं, जो एक बहुत ही अच्छे कल्चर में पले बड़े हैं, हम उनको क्या संदेश दे रहे हैं? इस्कॉन जो है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और शिल प्रभुपाद जी के द्वारा एस्टैब्लिश मूवमेंट है। हम वहां क्या शिक्षा दे रहे हैं कि वी अलाउ फ्री मिक्सिंग ऑफ ऑपोजिट सेक्स। हम जो है पूरी तरह से ऑपोजिट सेक्स को मिलने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको प्रोत्साहन देते हैं। क्या हम ये कल्चर एस्टैब्लिश कर रहे हैं, माय डियर मदर्स? मुझे वहां पर ये लगा कि ये गर्ल्स की गलती नहीं है, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है, इधर इनके काउंसलर्स के द्वारा, इनकी माताओं के द्वारा। मुझे अंदर से बहुत खेद हो रहा था। मैं कई माताओं से कह रहा था, माता जी आपका कीर्तन पीछे आ रहा है, उसमें बहुत कम माताएं, आप लोग उस कीर्तन को सुंदर तरीके से कीजिए। ये बड़ी सटल बातें हैं, बहुत छोटी बातें हैं। अभी जिस तरीके से हमारी बच्चियां कीर्तन मेलों में जा रही हैं, हाँ, जैसे सज धज के डांस कर रही हैं, हाँ, वेददेव की माता जी लिख रही हैं अपनी पुस्तक में, इससे केवल मिथ्या अहंकार का प्रदर्शन है। ये मिथ्या अहंकार का प्रदर्शन है। हाउ नाइसली आई कैन डांस, एंड वी इनवाइटिंग द अटेंशन ऑफ कृष्णा, और आर वी इनवाइटिंग द अटेंशन ऑफ ऑपोजिट सेक्स? ओनली वी कैन नो इन आवर हार्ट्स। मेरा कहना यह है, माता जी, प्रभु जी लोग, जो आप लोग गृहस्थ आश्रम में हो, अपनी कन्याओं को बचपन से बहुत ऐसे संस्कार दीजिए कि शी ऑलवेज फील्स दैट शी नीड्स प्रोटेक्शन, बिकॉज दे नीड प्रोटेक्शन। प्रभुपाद ने कहा है, कन्या को जब तक उसका विवाह नहीं होता, पिता का प्रोटेक्शन चाहिए, उसके बाद पति का प्रोटेक्शन चाहिए, उसके बाद पुत्रों का प्रोटेक्शन चाहिए। उसका सन्यास नहीं है, उसके लिए सन्यास नहीं है। ये शास्त्रों की बात हम लोग करेंगे। हम लोग जेंडर इक्वालिटी के चलते कुछ भी मनगढ़ंत बातें नहीं करेंगे। मैंने एक बार एक डॉक्टर से पूछा था, इसको मासिक धर्म क्यों कहते हैं, इसमें कौन सा धर्म जुड़ा हुआ है? जब मेरी वाइफ की तीसरी डिलीवरी हो रही थी, दूसरी, तब मैंने डॉक्टर से पूछा था। शी वॉज अ लेडी डॉक्टर। आई सेड व्हाई दिस इज नोन एज मासिक धर्म? उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर किया था। उन्होंने कहा था, क्योंकि ये स्त्री को एक धर्म के साथ जोड़ती है। जब कन्या का ये मासिक धर्म प्रारंभ होता है, अब घर के बाहर अकेले मत जाना, पिता सतर्क हो जाता है, माता सतर्क हो जाती है, कन्या कहाँ गई है, उसके पीछे भाइयों को जात भेजती है, उसका प्रोटेक्शन करती है। हाँ, जैसे ही उसका विवाह होता है, मासिक धर्म रुक गया। ओह, अब इसके पैर भारी हो गए हैं, अब इसको बहुत अच्छी तरह से टेक केयर करना है, आराम से चलना, सीढ़ियां मत चढ़ना, पकड़ के चलना। हाँ? और फिर एक स्टेज में जाकर के ये मासिक धर्म स्वतः बंद हो जाता है, जब उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो भगवान ने स्त्री को एक धर्म के साथ जोड़ा है, जिससे कि समाज में पता रहे कि इसका किस तरीके से पालन पोषण करना है। प्रभुपाद स्त्रियों के अंदर 18 गुण बताते हैं कि क्या क्या गुण उनके अंदर विकसित किए जाने चाहिए। सेवा की भावना, घर में आप अपना भक्ति वृक्ष चला रहे हैं, बच्चियों को सेवा में लगाइए।
प्रसाद कुकिंग की सेवा में लगाइए, सर्विंग की सेवा में लगाइए, कीर्तन की सेवा में लगाइए, बुक्स पढ़ने की सेवा में लगाइए। नम्रता, उनके अंदर सदा इस बात का बीजारोपण कीजिए, ह्यूमिलिटी इज द ऑर्नामेंट। स्वच्छता, बाह्य और आंतरिक स्वच्छता, सत्यवादिता, संतोष। स्त्री को संतोष करना सीखना होगा, बहुत आवश्यक गुण है। ओ नहीं, हमारी अकेले की कमाई से घर नहीं चलता, तो तुम और कमाओ या फिर उतनी कमाई में रहने की आदत डालो। मैं सभी कन्याओं से इस बात को कहना चाहता हूं, भले ही वो शादी के बाद, अपने विवाह के बाद कोई ऐसा कार्य करके कुछ धनोपार्जन कर भी लें। सपोज वो डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर के प्रोफेशन में कर सकती है अब धनोपार्जन। कोई टीचिंग का प्रोफेशन है तो घर पे कुछ ट्यूशंस वगैरह ले सकती है, या एज अ टीचर किसी स्कूल में भी जा सकती है, या कोई अगर उसका कोई प्रोफेशन है जिसमें लेकिन, और ये देवकी माता जी की पुस्तक में है, उसने अपने होने वाले पति से इस बात को स्पष्ट कहना चाहिए, आई विल नॉट अर्न, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो जिम्मेदारी लेने के लिए, मेरी और मेरे होने वाले संतानों की? और संतान एक नहीं, कम से कम दो तीन चार संतानें। एक संतान इस बराबर 9 संतान, एज पर शास्त्र। कम से कम दो या तीन संतानें होनी चाहिए। इसीलिए हमारा सनातन धर्म जो है, ये इतना, जिसे कहना चाहिए प्रकोप का कारण बन, मतलब कितना प्रकोपित होता जा रहा है। हाँ, हमें बच्चे नहीं चाहिए, हमें मौज मस्ती चाहिए, हमें विवाह चाहिए, लेकिन बच्चे नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा गुनाह है, ये सबसे बड़ा अपराध है। जब आप अपना भोग तो, इंद्रिय भोग तो करना चाह रहे हो, लेकिन उस इंद्रिय भोग का जो परिणाम है संतति, उसको नहीं चाह रहे हो, परिणाम स्वरूप उसकी सजा मिलती है, फिर उसकी सजा मिलती है। आज समाज में ऐसे ऐसे भयानक रोग हो रहे हैं, कभी सोचना चाहिए इसका कारण क्या है। तो ये कंडीशन रखनी चाहिए। आप मेरी पुत्री के ऊपर अर्न करने की कंडीशन तो नहीं डालोगे कि तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। अगर वो लड़का कहता है नहीं काम करना ही पड़ेगा, तो हम उसे घर में विवाह नहीं करेंगे, बिकॉज ही इज काउंटिंग ऑन द अर्निंग ऑफ द फीमेल। किस प्रकार के तुम पुरुष हो, किस, ये तुम्हारा काम है। अगर आप माता जी की पुस्तकें पढ़ोगे, आप उसमें पाओगे कि पुरुष का जो भगवान ने संरचना की है, इस हिसाब से की है कि वो संसार के लोगों को डील कर सकता है, वो कुछ तिकड़मबाजी कर सकता है, वो बाहर के लोगों के साथ बिजनेस कर सकता है। स्त्रियों को ऐसे गुण दिए हैं कि वो एक घर को सुंदर स्वर्ग जैसा बना सकती है। दोनों का कोई समावेश, दोनों का कोई मैचिंग नहीं है। वन इज मेंट फॉर वन पर्पस, द अदर पर्सन इज मेंट फॉर अदर पर्पस, एंड बोथ पर्पसेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट। रादर फीमेल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारे बच्चियों को हम छोड़ दे रहे हैं कीर्तन मेलों के नाम पर, वो कैसे भी जाकर के, आज अभी मैंने मायापुर में देखा, जेंडर इक्वालिटी के नाम हाथ में हाथ डाल के लड़की लड़का चल रहे हैं। इज दिस मायापुर मेंट फॉर? ये मायापुर का कल्चर है ये महाप्रभु का कल्चर है, ये प्रभुपाद का कल्चर है ये? डिड प्रभुपाद प्रमोट दिस? भक्ति के नाम पर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, माय डियर डिवोटीज, कुछ भी कर सकते हैं। अपने मिथ्या अहंकार को, अपनी लोअर इंक्लिनेशंस को सेटिस्फाई हम सब कर सकते हैं भक्ति के नाम पर। तो इसलिए प्लीज, द गर्ल्स, जो आप में से कई बच्चियां भी होंगे, 18-20 साल के भी होंगे, हाँ कुछ माताएं होंगी, आप दोनों को समझना है कि आपकी रियल स्थान है अपने पेरेंट्स के साथ। आप कहीं भी जाते हो, अपने पेरेंट्स के साथ रहो, सो दैट नो बडी लुक्स यू, आपके ऊपर कोई भी गलत दृष्टि से ना देखे, आपका शोषण करने का ना सोचे। क्यों? क्योंकि आप देखिए समाज में जब स्त्री और पुरुष दोनों अगर एकदम इंडिपेंडेंट विचारधारा वाले हो जाएंगे, प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं,
पुरुष और स्त्रियों को अनुचित निजी संपर्क से बचना चाहिए. Females and males should, you know, uh, restrict themselves from unnecessary touch, unnecessary contact. समाज में आदर्श प्रस्तुत करना अति आवश्यक है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं. कारण कारण स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन. हमारे मंदिरों को हम वैकुंठ कह रहे हैं, और हमारे मंदिरों में अगर आध्यात्मिक वातावरण की रक्षा नहीं की गई, फिर लोग कहां जाएंगे? हम तो अपने मंदिरों के अंदर भी लड़के लड़कियों को छोड़ दें मनमाने आचरण करने के लिए. हमारे नागपुर मंदिर में कुछ बच्चियां कई बार आ जाती हैं, कोने ढूंढ करके बैठ जाती हैं. इमीडिएटली हम उनको जाकर समझाते हैं, नो दिस इज नॉट दिस प्लेस, लेट्स गो आउट इन सम पार्क. मंदिर इसके लिए नहीं है. हम लोग समाज में आदर्श स्थापित करने के लिए हमारे मंदिर है. इवन जो मैरिड माताएं हैं, उनको भी हाँ, स्वतंत्र पुरुषों के साथ, पुरुष भक्तों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए. चाहे वो डीटी डिपार्टमेंट में है, चाहे प्रचार की सेवा में है. नो, दे शुड बी विद देयर हस्बैंड्स व्हाइल प्रीचिंग. दे शुड बी सर्विंग विद देयर हस्बैंड्स. प्लीज डोंट माइंड माई सेइंग सो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माताएं अपने प्रभु लोगों के साथ में ही रहें, उनके साथ में ही सेवा में संलग्न हो. फिर चाहे वो प्रचार की सेवा हो, चाहे प्रसाद बनाने की सेवा हो, चाहे डीटी डिपार्टमेंट की सेवा हो, चाहे पुस्तक वितरण की सेवा हो. हमें आध्यात्मिक वातावरण की रक्षा करनी है. आधुनिक समाज में और वैष्णव दृष्टि के अंतर को हमें समझना चाहिए. आध्यात्मिक समाज में स्वतंत्रता के नाम पर इंद्रिय भोग को बढ़ावा दिया जा रहा है. आप देख सकते हैं आज के समाज में वेयर इट इज गोइंग. लिविंग इन रिलेशनशिप्स, LGBT relationships, these are all illicit relationships. These are all illicit relationships. और इस बात को समझ लीजिए. हम लोग कहते हैं फिर क्या हुआ इससे? ये ही संस्पर्शा भोगा दुख यौन एवते आद्यंतवंत कौनते न तेषु रमते बुधा. दुख चाहिए तो इस प्रकार के क्रियाएं करिए. ये समझिए, हमारे जीवन में जो भी दुख सुख आते हैं, हमारी अपनी क्रियाओं के द्वारा आते हैं. शक्नोति है शक्नोति है यह सोणुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स सुखी स युक्त स सुखी न रहा. सुखी होने की परिभाषा दी है भगवान ने, दुख की परिभाषा दी है भगवान ने. फिर भी हम नहीं चेत रहे, फिर भी हम नहीं समझ रहे. वैष्णव दृष्टि में स्वतंत्रता का मतलब है, अगर हमें रियली में स्वतंत्र होना है तो हमें आत्मनियंत्रण करना चाहिए. अपने इंद्रिय भोग की वश में जो हम लोग फंसे हुए हैं, उससे स्वतंत्र होना चाहिए. वी वांट इंडिपेंडेंस, यस, आई वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम माय अनवांटेड सेंस डिजायर्स. अभी तो हम इसमें परतंत्र हुए पड़े हैं. इससे हमें स्वतंत्रता चाहिए. हम्म? पवित्रता शक्ति है, माय डियर डिवोटीज. चेस्टिटी शक्ति है, कमजोरी नहीं है. ये कमजोरी नहीं है. इस्कॉन ही एक ऐसा समाज है. ये अभी आप जो वार की विभीषिका बन रही है, कितना भयानक युद्ध चल रहा है. कल कोई विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो जाए. विश्वास कीजिएगा, वैष्णव समाज की नींव, वैष्णव समाज का बीज इस्कॉन के भक्त प्रोटेक्ट कर रहे हैं. भक्ति रसामृत स्वामी महाराज बहुत बड़ी एक वर्णाश्रम व्यवस्था बना रहे हैं. भक्ति विकास स्वामी महाराज वर्णाश्रम व्यवस्था बना रहे हैं. हाँ, गांव में प्रचार हो रहा है. तो ये किस लिए हो रहा है? जिससे कि वैष्णव समाज का, वैष्णव कल्चर का बीज सुरक्षित रह सके. तो वो बीज कैसा होगा? जिसमें स्त्रियों को समुचित ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि वो स्त्रियोचित कार्य कर सके.
जो पुरुष नहीं कर सकता है। पुरुष की आप बचपन से गुरु हैं, अभी गुरु बनने की दिशा में बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है। आप गुरु हो, आपको गुरु बनने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भगवान के विषय प्रभुपाद ने कहा, गॉड इज गॉड, ही कैन नॉट बिकम गॉड। आप गुरु हो पुरुष की, क्योंकि आप उसको कोख में पालते हो, आप उसको बचपन में नर्सरिंग करते हो, आप उसे पहला उंगली पकड़ के चलना सिखाते हो। वो पुरुष कैसे आपको हे दृष्टि से देख सकता है? तो मैं पुरुषों से, पुरुष भक्तों से कहना चाहता हूं, माताओं का बहुत अधिक सम्मान होना चाहिए। यत्र देवता तिष्ठन्ति, जहां पे नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। कोई अपनी स्त्री का अपमान ना करे, कोई माताओं को हे दृष्टि से ना देखे, उनको कमजोर ना समझे। आपकी भक्ति शुरू भी नहीं हुई है अगर आप माताओं को हे दृष्टि से देखते हैं तो। they're highly venerable, respectable, you know. चेस्टिटी खाली स्त्रियों के लिए ही नहीं है, प्रभुपाद कह रहे हैं पुरुषों के लिए भी समान रूप से आवश्यक है चेस्टिटी, निष्ठा, पवित्रता। कि पुरुषों के लिए भी उतनी आवश्यक क्रिया है। हम अपने जीवन को जानते हैं, हम अपने जीवन को देखते हैं, हमने उससे सीखा है। हमारी वाइफ आज से 16 साल पहले उनका शरीर छूट गया था, और हम इस बात को खुल के कह सकते हैं, वो एक पतिव्रता स्त्री थी, वो चेष्ट माता जी थी। और जिन माताओं ने इस नोएडा में हमारी पत्नी का संग किया, वो सब कह सकते हैं इस बात को। अब ऐसी चेष्ट माता जी के, स्त्री के हमारे जीवन में होने के बाद में, अगर हम उनके जाने के बाद में, कितना प्रेशर था, कैसे बच्चे पालोगे, कैसे बच्चियां अब छोटी छोटी हैं, दोबारा विवाह करना चाहिए। हमने मन में सोचा है, गुरु महाराज की कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है, हाँ, कि हमें वैसा जीवन साथी नहीं मिल सकता। अगर हमने ऐसा किया तो हम वो माता जी के प्रति वास्तव में जस्टिस नहीं कर पाएंगे। हम अपने जीवन को एक तपस्या बना के बच्चों को अच्छे से पाल पोस कर इनका विवाह करेंगे, फिर गुरुदेव की सेवा करेंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं है, वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। चेस्टिटी हम पुरुषों के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट गुण है जितना माताओं के लिए है। खाली माताओं से हम एक्सपेक्ट करें चेस्ट रहे और पुरुष कहीं भी देखते रहे, ये अच्छे समाज की संरचना होगी? नहीं। थोड़ा सा आज का क्लास हो सकता है किसी को थोड़ा हैवी लगा हो, बट आप भारतीय माताओं को भारतीय संस्कृति का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए, जिससे हमारी विदेश से जो माताएं आए, वो जब देखें तो उनको लगे कि हाँ, वास्तव में ये गुण सीख करके हम लोग जो हैं रियली सुखी हो सकते हैं। हमारी पत्नी से किसी ने 1995-96 में पूछा था, क्या आपका इंडिपेंडेंट अकाउंट नहीं है? क्या आप अपने पति के साथ ही अकाउंट मेंटेन करते हो? माय वाइफ वाज लाफिंग, व्हाई आर दे आस्किंग दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कैसा है? क्यों? क्योंकि विदेशी माताओं के, साउथ अफ्रीकन माताएं थी, वहां पे कल्चर था, पति का अकाउंट अलग, मेरा अकाउंट अलग। ये गलत है। ये स्त्रियों में ये इंडिपेंडेंस की भावना ठीक नहीं है। हैव अ कॉमन अकाउंट विद योर हस्बैंड, यू नो। इससे जो है हमारे डिसलॉयल्टी की, या जैसे कहना चाहिए चेस्ट ना होने की भावना का उजागर होता है ये इससे। आई डोंट नो, मैं इतने शब्द नहीं प्रयोग कर पा रहा हूँ। ठीक है, we'll stop here. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। Thank you very much, Hari Kirtan Prabhu, for touching this most sensitive and most practical topic of our society. ना केवल हमारे गुरु भाई बहनों में, लेकिन इन जनरल इस्कॉन में इसकी काफी आवश्यकता है। तो आप जब देवकी माता जी को कोट कर रहे थे, तो माता जी का ही एक स्टेटमेंट है, वो कह रही थी कंट्रोवर्सी ऑफ टुडेस सोसाइटी में। उनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जिसमें माता जी कह रहे हैं कि वैदिक समाज में, आई एम जस्ट शेयरिंग विद योर परमिशन, वैदिक समाज में प्रभुपाद जी ने सिखाया है, हम शास्त्रों में भी पढ़ते हैं कि एक पतिव्रता नारी का लक्षण है कि जब उसका पति घर में है
तो वो 16 श्रृंगार करके पति की संतुष्टि के लिए, पति की प्रसन्नता के लिए रहती है। और स्त्री को देख के समझ आता है उसका पति घर में है या नहीं। अगर उसका 16 श्रृंगार है तो लगता है या समझ आना चाहिए कि हाँ, पति घर में है, कहीं बाहर यात्रा में नहीं है या कहीं कुछ काम से नहीं है। और जब वो पति जाता है कहीं ट्रैवलिंग में कहिए या बिजनेस से या जो भी है, तो स्त्री लगभग कोई श्रृंगार धारण नहीं करती। Yes, तो इससे very समाज nice को भी, point. गांव में भी समझ आ जाता है कि अच्छा, ये इनका पति गए हैं कहीं या गए होंगे। तो माता जी कह रहे थे कि आज का कंट्रोवर्सी का या आयरनी ये चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है माता जी का। माता जी कहते हैं हमारे इस्कॉन की शादीशुदा स्त्रियां विधवा की तरह रहती है, कोई श्रृंगार धारण नहीं करती, और जो अविवाहित लड़कियां हैं वो 16 श्रृंगार धारण करके चलती है। तो माता जी का ये बहुत ही हैवी स्टेटमेंट था। Yes, मैंने एक बार yes, she मायापुर में has. उनका एक सेमिनार अटेंड किया था, तो माता जी Yes, कह रहे थे कि दिस इज एन आयरन इन टुडे सोसाइटी। yes. यंग गर्ल्स रोम अराउंड विथ सो मच cosmetics on her. Why? And then married ladies, they roam around like widows. So काफी हैंड रेज्ड है हरि कीर्तन प्रभु, तो आई थिंक I don't know कुछ what to do. क्वेश्चन आंसर्स की एक्सपेक्टेशन है कई भक्तों की, माताओं की या प्रभुगण की भी। तो देखते हैं कितने कवर हो जाएंगे या कर सकते हैं। प्रसन्न माधवी माता जी। अगर किसी की कोई हरे भावना कृष्णा। आहत हुई हो, आज के क्लास से किसी की भावना आहत हुई हो, तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। मैं अपने जीवन से ही बोल रहा हूँ, मेरे पास और आप लोगों के जीवन का अनुभव नहीं है। हो सकता है आप सबका अनुभव अलग अलग हो, लेकिन मैं आप सबसे प्रार्थना भी करता हूँ कि मेरे पुत्रियों को आप लोग आशीर्वाद देना कि वो लोग अपने परिवार में बहुत ही अच्छी तरह से चेष्ट के साथ रह सकें, और उनके कारण मेरी भक्ति में कोई व्यवधान ना आए। मैं आप सबसे आशीर्वाद भी लेना चाहता हूँ बच्चों के लिए। हरे कृष्णा। यस, प्रसन्ना माधवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि इतना अच्छा क्लास था कि हमें वास्तव में क्या होना चाहिए ये आभास हो गया। और मेरा प्रश्न, आपने जो बोला वो मैंने लाइफ में लागू करने की कोशिश भी की, कि मैंने भी छोड़ने की कोशिश की। पहले मैं सब कुछ बिजनेस करना, ये करना, ये करना, सब कुछ करते करते आपने जो बोला ना वही सही है कि मैं इतना थक जाती थी कि मेरा भक्ति में अहंकारी ज्यादा हो जाता था। तो जब मैंने ये मुझे प्रभु जी को ट्रांसफर करना है ऐसे छोड़ के 15 डेज बिजनेस और 15 डेज धाम में बैठने शुरू कर दिया, तो उससे मुझे आनंद आने लगा। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मैं बिजनेस वुमन भी हूँ, तो मुझे व्यापार करना पड़ता है घर में चलाने के लिए, गृहस्थ धर्म निभाने के लिए भी। पर मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगता है, मुझे उसमें आनंद नहीं आता है जैसे मुझे घर के श्रृंगार और घर के जो मेरा आपका कर्तव्य प्रश्न है क्या है उसमें मुझे माता जी? आनंद आता प्रश्न है। पूछिए, प्रश्न पूछिए। हाँ, प्रश्न मेरा क्या है? प्रश्न है कि हमें व्यापार कैसे, मतलब घर चलाना हो तो बिजनेस करना पड़ेगा, तो ये आवश्यक है मेरे लाइफ में अभी। तो इसको कैसे हम धर्म के साथ, कर्तव्य के साथ आगे बढ़ा सकते हैं? हमें छोड़ना चाहिए या फिर उसको कैसे हम शास्त्र के, हरे धर्म के कृष्ण। ठीक अनुसार? है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया आपका प्रश्न माता जी। तो आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर द नाइस क्वेश्चन। अगर ये फैमिली बिजनेस है आपका और आपके प्रभु जी के द्वारा करने से ये पर्याप्त अच्छी तरह से चल सकता है, तो फिर आप उसमें थोड़ा सहकार कर सकते हो। दिन में 1-2 घंटे घर से, या किसी को कॉल करना है, या ऑर्डर्स लेना है, या फिर अकाउंट्स देखना है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कोई ऐसे, तो आप घर से करो। पति को अपने सहयोग करो, नथिंग रॉन्ग विद दैट। अगर 1-2 घंटा आप उसमें देते हो, बट आपकी बहुत ज्यादा ऑपोजिट सेक्स से बाहर डीलिंग नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वो आपका नेचर नहीं है। जैसा आप कह रहे हो, आप थक जाते थे, आप परेशान होते थे पहले। तो अगर आपके पति के द्वारा किए गए बिजनेस से अगर आपका घर अच्छे से चल सकता है, देन यू डोंट नीड टू वर्क। यू कैन जस्ट फोकस ऑन योर रीडिंग, ऑन योर डेवलपमेंट। अच्छा डीटी वर्शिप करो, आप अच्छा कुकिंग करो, अच्छा सेवा करो, प्रचार करो माताओं में, एंड दैट्स वे यू कैन लिव वेरी हैप्पीली। तो इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और अगर आपकी जरूरत है घर में बिजनेस को, तो यू गिव 2-3-4 आवर्स घर से ही दो आप, लेकिन डीलिंग्स में प्रभु जी को इन्वॉल्व करो। दूसरे पुरुषों के साथ डीलिंग है, बिजनेस पार्टनर्स के साथ डीलिंग है, दैट शुड बी ओनली डन बाय प्रभु जी। कई बार मैं देखता हूँ इस इंडिया में
ये कल्चर है कि मेल्स अपने बिजनेस में फीमेल्स को इसलिए यूज करते हैं that so because so that they think that they can easily do the business successful. No, that is a wrong concept, that's a wrong thinking altogether. माताओं को आगे कर देते हैं बिजनेस करने के लिए, और वो बिल्कुल ठीक नहीं है, शास्त्रोचित नहीं है. माताएं बैकग्राउंड में रह करके बिजनेस में मदद कर सकते हैं, बट नॉट ऑन द फोर फ्रंट्स. हमारे घर में हमने देखा माताओं को हिसाब लिखती थी घर पे, पुरुष आके सारे हिसाब की पर्चियां दे देते थे, हिसाब की कॉपियां मेंटेन करते थे. ठीक है, दैट्स ओके, यू कैन हेल्प योर हस्बैंड इन दैट वे. ओके, अलाहाबाद शुभ लक्ष्मी माता जी, क्विकली शॉर्ट में क्वेश्चन पूछिए अगर कोई प्रासंगिक है माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी. आपने माता जी की जो पुस्तक का नाम बता सकते हैं और वो कहाँ से यस, अवेलेबल रहेगी तीन प्रभु जी? तीन पुस्तकें हैं, ये आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो. फैमिली लाइफ एज एन आश्रम, स्पिरिचुअल कल्चर, एंड एंटरिंग इनटू गृहस्थ आश्रम. ओके, नेक्स्ट. सुनिर्मल चैतन्य प्रभु, सुनिर्मल चैतन्य प्रभु. He is brother-in-law of our dear Vedant Chaitanya Prabhu. Yes, yes, his brother-in-law Vedant Chaitanya Prabhu, I know him. Hare Krishna, Dhanvat Pranam Prabhu. Prabhu, Hare बताइए. Krishna, Dhanvat Pranam Prabhu. My humble obeisance to His Thank Grace you, Prabhu. Padma Mali Prabhu ji also, Prabhu. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. Actually, this topic is the need of the hour. Wonderful Krishna. topic, Prabhu. In modernism, Prabhu, as a teacher working in a college, so many workshops are happening on feminism or gender bias or gender equality, Prabhu. Nowadays, Prabhu, in our universities or colleges, number of girls is the number of girls who are studying in college more than boys, Prabhu. Every girl is bound to do a job. Jobs are also available. Normally, they are bound to do in corporate and so-called modern environment. So my question is, how the girls or women can maintain their spiritual culture focus and traditional cultural values while doing their jobs in what you call corporate environment? Yeah, so it's not that devotee girls cannot work outside. If at all Yes, they have to work, they yes, can still maintain sanctity. Still they can maintain their chastity. As matlab, my daughters also initially they were working, but finally they understood कि ये समाज ऐसा नहीं है जहाँ पर कि आप मतलब chastity के साथ में काम कर सको. Because outside everybody is materialistic thinking, they all have materialistic thinking, they all are ready to exploit you. और गर्ल्स को yes, विशेष करके सीए किया है, सीए फर्म में काम कर रही है, रात में लेट लेट काम करा रहे हैं, बिकॉज शी इज लाइक लॉयल, शी इज तो she has to maintain her boundaries, she can express her limitations, she can talk to her, so that she doesn't get exploited. My point is that a girl should be protected. अगर उसके वर्क yes, प्लेस में उसके बॉसेस को ये नहीं समझ में आ रहा है कि गर्ल है, इसको टाइम से घर भेजना चाहिए, इसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, देन शी शुड नॉट वर्क इन सच अ प्लेस. Girl, they should not get exploited by males. They should remain yes, maintain their sanctity and chastity. अगर तो देखिए, इसीलिए हम लोगों को प्रचार बहुत तेज करना है. इस्कॉन के भक्तों को बहुत प्रचार करना चाहिए, माताओं को भी प्रचार करना चाहिए, जिससे कि हम इन गर्ल्स को सही शिक्षा दे सकें. पढ़ाई लिखाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या अगर मैं काम ना कर सकूं? नहीं, पढ़ाई लिखाई का फायदा है, ऐसा नहीं. और अगर आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सपोज जाना भी पड़ता है, still you can be devotees, you can cover yourself with the mood, with the right mood, by dressing yourself nicely, by maintaining proper safe distance with the males, and also spreading the environment of purity, in your workplace. मेरी डॉटर कंठी माला पहन के हंसराज कॉलेज में जब पढ़ रही थी, तो उसके फ्रेंड्स वो कहती थी पापा वो स्मोक करते हैं, वो लोग ड्रिंक करते हैं, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आता, बिकॉज दे सी मी एज डिफरेंट. तो बच्चियों को पढ़ाने में, लेकिन हमारी बच्चियों को एक बाउंड्री बनाना होगा अपने चारों तरफ. उनको जो है एक अपना सैंक्टिटी प्योरिटी मेंटेन करना होगा. इसके लिए हम हमारे भक्त माताओं को बहुत अच्छी शिक्षाएं बच्चों को घर में देनी होंगी, while they are also getting the education. Okay, so Nirmal Chaitanya Prabhu. Okay, उन्नत शक्ति उन्नत माता. भक्ति माता जी.
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो आपने ये 3 बुक्स बताई हैं, तो हमें इनका ही नाम चाहिए क्योंकि है जी। माता जी आप चैट देख लीजिए, हमारे ट्रांसक्राइबर्स ने दिया है चैट में, तीनों बुक्स का नाम दिया है, आप वहां देख सकते हैं। मंजुलाली गोपी मंजुलाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत ही जय अच्छा श्री लेक्चर प्रभु। था। थैंक यू, जय श्री प्रभुपाद। सो प्रभु, वैसे तो हम देखते हैं इस्कॉन में भी माता जी इसको कभी सेक्टर लीडर, सर्कल लीडर का पद दिया जाता है, जैसे कुछ हद तक अगर हम थोड़े टाइम तक भक्ति कर लेते हैं। लेकिन वी हैव सीन दैट प्रभु जी डोंट लाइक टू टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम माता जी। बट देन इस सिचुएशन में माता जी को क्या करना चाहिए? स्टेप बैक करना चाहिए या उस पद पर रहकर, हम्बल रहकर सर्व करना चाहिए? क्योंकि ये डिफरेंस हमेशा रहता ही है। So what to do? Actually, Yeah, I don't know how to. that's why Mataji should preach amongst Matajis. You know, this is Okay. unnatural situation when a Mataji is guiding male devotees, and at some point she will feel that, you know, because uh, please understand कि the nature has been nature जो males का and females का बना है, उसमें थोड़ा सा पुरुष के अंदर ये स्वभाव रहता है, ईश्वर भाव उसके अंदर डाला गया है प्रकृति के द्वारा। अगर ईश्वर भाव उसके अंदर नहीं होगा, पैशन नहीं होगा, तो वो संसार में जूझ के कार्य करके और अर्थोपार्जन नहीं कर पाएगा। इसलिए उसके अंदर एक प्रकृति ने डाला है ईश्वर भाव, जो कि हम लोगों को शनै शनै खत्म करना है। लेकिन टू इन गृहस्थ आश्रम अ मेल इज, तो ऐसे में माताओं को अगर आप पुरुषों को प्रचार करेंगे, तो पहली बात तो बहुत ही आपके आपके प्रभु जी की परमिशन से होना चाहिए, उनकी प्रेजेंस में होना चाहिए। एंड यू शुड humbly, submissively place the philosophy in a way that you are not directing them or controlling them or ordering them. Rather, you are just placing the philosophy in a humble way. I cannot say that Matajis will not remain Bhakti Vriksha leaders, or no, they can be Bhakti Vriksha leaders, but they have to run Bhakti Vrikshas with their Prabhus in the first place. Secondly, they have to see that nobody is getting offended with their preaching. They should understand this. बहुत important है ये. Otherwise, there can be frustration कि मेरी माता जी मेरे को माता जी समझ के लो, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मैं इतना अच्छा प्रचार कर रही हूँ। तो you have to know that आपको क्या प्रचार करना है, आपके प्रभु जी को क्या प्रचार करना है। इसलिए माताओं को अपने प्रभु को प्रचार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और साथ में उनके प्रचार करना चाहिए, जिससे कि वो अपने कॉन्ग्रेगेशन के जो फेमिनिन काउंटर पार्ट है उसको प्रचार करें, और प्रभु जी जो है प्रभु उसको प्रचार करें। इस तरीके से संतुलन बनेगा। ओके मंजुलानी माता जी। Thank you so much, Prabhu. Thank you very हरे much. कृष्ण। Thank you. In continuation to this हरे कीर्तन प्रभु, it would be nice अगर फ्यूचर में आप और एक प्रेजेंटेशन, सेमिनार कहिए या टॉक दे जिसका टॉपिक हो लेडीज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। ओके, बिकॉज we can have. दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं आजकल। आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माताजीज, बट दे आर too excited to become preachers. No fault, nothing wrong in that. Mahaprabhu said, "Amaragya guru yatare desh." You know, everybody has to preach. Agreed. But वो preaching के अंदर एक अलग passion आ जाता है, और at the same time, so उस topic में ladies in Krishna consciousness में you can also comment something on Mataji's ka dealings with brahmacharis and sannyasis. What is the ideal dealing of Mataji's? यहाँ अभी ब्रह्मचारी रिट्रीट चल रहा है नासिक में, हमारे एमपीएम जोन के 180 से ज्यादा ब्रह्मचारी आए हैं। तो कल गुरु महाराज उसी के ऊपर कमेंट कर रहे थे, ब्रह्मचारीज डीलिंग्स विथ लेडीज। एट द सेम टाइम ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेडीज का डीलिंग विद ब्रह्मचारीज एंड सन्यासीज। वी सी दे डील वेरी कैजुअली, वेरी फ्रीली, आई मीन on the name of modernization और free mixing कहिए या on the name of compromising। तो ये टॉपिक आप अगर लेना चाहें, आज हम will take one last question for today's session. We can stop. I think we can we'll just hear from अंतर्यामी कृष्ण प्रभु। काफी समय से उन्होंने हैंड रेस किया है, बाकी भक्तों ने तो अभी लास्ट में किया, so we can't accommodate that. अंतर्यामी कृष्ण प्रभु, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम्बल ओबीसेंसेस। प्रभु जी बहुत ही सुंदर लेक्चर था प्रभु।
तो मैं क्विकली एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम मिसअंडरस्टूड, बट मेरे मन में ये सवाल आता है कि जो आज का जो वैश्विक स्तर में जो प्रचलन चल रहा है, इसमें क्या है कि स्त्रियों को अधिक नौकरी दिया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर बोलिए, प्राइवेट सेक्टर बोलिए, या किसी भी सेक्टर में स्त्रियों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। जो हमारा जो कामुक समाज है, वो स्त्रियों को काम देने में, कमाई देने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ऑनलाइन बिजनेस में भी। इसमें इसमें क्या हो रहा है, ये भी एक कारण है जहां तक मेरा जो सीमित समझ है, कि स्त्रियों को काम करना पड़ रहा है और उनको काम मिल रहा है और पुरुषों को नहीं मिल रहा है। तो ये अगर समस्या है कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन और थोड़ा और ज्यादा गाइडेंस दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। हरे कृष्ण प्रभु। ये मॉडर्न समाज की जो ये जो कुरीतियां हैं, ये निश्चित रूप से सामने आ रही हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि मॉडर्न समाज, ये मतलब कृष्णा इज सेइंग या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। सांसारिक लोगों का जो दृष्टिकोण है और आध्यात्मिक लोगों का दृष्टिकोण है, इसमें दिन और रात का डिफरेंस हमेशा हर चीज में रहेगा। तो ये जो आपने प्रश्न किया कि माताओं के लिए ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो अगर कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर ओनली फीमेल ब्रांचेस हैं, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं बैंक्स में फीमेल ब्रांचेस हैं, या टीचिंग प्रोफेशन, तो गर्ल्स शुड बी वाइज इनफ टू चूज देयर प्रोफेशन और जॉब्स इन विच देयर फैमिली लाइव्स आर नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड. Look, my purpose of giving this lecture was that there is such a big role for mothers. लेकिन आपने कहा कि अगर उन्हीं को जॉब मिल रहा है, पुरुषों को मिल ही नहीं रहा है, तो आई कैन नॉट बिलीव कि पुरुषों को जॉब नहीं मिलेगा और वो सब खाली रहेंगे और माताओं को खाली जॉब्स मिलेंगे। तो अगर ऐसा हो रहा है, उनको कुछ हो सकता है, उनको रिजर्वेशन ज़्यादा कर दिया हो, उनको उसके चलते उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही हो। But I think as per we are talking, what Shastras say, that Matajis take, a responsibility at home, and Prabhus work in the outer world, and they earn the livelihood. अगर उनको कभी सपोज माता जी की हेल्प लेनी भी पड़ रही है, then they have to match how the children are not, children's upbringing is not compromised. या तो उन्होंने अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के साथ रहना चाहिए, या उन्होंने अपने मदर फादर के साथ रहना चाहिए, जिससे कि उन बच्चों को जितना प्रेम स्नेह मिलना चाहिए वो मिले ही मिले। क्योंकि अगर वो कॉम्प्रोमाइज हुआ, देन दैट इज वर्ण संकर। फिर हम समाज में ऐसे ही जीव लाएंगे, ऐसे ही बच्चों को लाएंगे जो ये सब कर रहे हैं। पद्माली प्रभु जी का भी जो प्रश्न था, मुझे बहुत झटका लगा जब मैंने कुछ माताओं को गुरु महाराज के लिए वी लव यू गुरु महाराज ऐसा कहते सुना, एंड दैट इज नॉट द कल्चर। यहीं पर these all things need to be checked up. We cannot say such words for our spiritual master. ठीक है, आपके हृदय में कोई ऐसा भाव नहीं होगा, बट ये वाणी का दुरुपयोग है। वाणी की तपस्या भगवान ने बताई है भगवत गीता में, हम सबको वो लर्न करना होगा। वाणी का दुरुपयोग नहीं कर सकते। स्त्री की अगर वाणी को वो लज्जा से नहीं ढाकेगी, अगर शी विल नॉट कवर इट विद हर जैसे कहना चाहिए, तो फिर क्या होगा? देन शी कैन टॉक एनीथिंग लाउडली स्लोगन बना के। एंड दिस सोशल मीडिया दीज डेज, दैट इज द बिगेस्ट कल्प्रिट। सोशल इन्फ्लुएंसर बनने की होड़ में बाप रे क्या क्या चल रहा है। And this is all influence of our false ego. And अगर हम false ego के influence में रहना चाहते हैं, हम बड़े बड़े social influencers बन जाएं, लेकिन sorry to say we won't be able to influence Krishna, जिसका जो मेन कारण है हमारे भक्ति में आने का, हम उससे चूक जाएंगे। और मैंने राधे श्याम प्रभु ने अभी एक मैसेज लिख के भेजा, अ लाइफ विदाउट पर्पस slowly turns into entertainment. Scrolling increases, meaning disappears. Very strong, very nice. A life without purpose. अगर हम सबका पर्पस ये है, अगर हमको सबको पता है कि today can be the last day, am I doing what am I supposed to do? He writes, a life without purpose slowly turns into entertainment. Scrolling increases, meaning decreases. So we have to understand this. Okay, we'll stop here. It's already 8 o'clock. Sorry. Does that answer your question? Thank you so much, Krishna Prabhuji. Prabhu? Thank you so much. Hare Krishna. ठीक है, पद्मावती If there प्रभु। is further Thank you. discussion that can be done on personal level, अंतर्यामी कृष्ण प्रभु, तो आइए हम सभी परागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान हरि कीर्तन प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए, जो कि जैसे कई भक्तों ने कहा नीड ऑफ एन आवर है, आज के समय की मांग है ये। तो प्रभु जी ने इतने सुंदर भाव से और निडरता से
डट के जैसे कहते हैं डंके की चोट पे आज का टॉक दिया है। तो महाप्रभु भी कहते हैं सिद्धांत बोलिए ना चित्ते ना करिए आलस। तो हमारा जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो बोलने में कभी भी कॉम्प्रोमाइज या डायल्यूशन नहीं करना चाहिए। तो प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर भाव से आज का टॉक दिया है। तो आइए हम सभी प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हुए महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। श्रीमान हरि कीर्तन प्रभु की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।